नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय आपके साथ मैं अनिंदिता। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाई मैरियट पर क्योंकि यहाँ पर मणिपाल हॉस्पिटल द्वारा एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है। एक कम्युनिटी वेलनेस स्क्रीनिंग इनिशिएटिव जिसका नाम है कवच। और इस कवच का मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि कम्युनिटी एरियाज़ जो है जो भी रूरल एरियाज़ है वहाँ पर जाकर लोगों तक स्क्रीनिंग करना, लोगों के बारे में जानना और उनको जागरूक करना। जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, वो उसके बारे में जागरूक नहीं होते। इसीलिए वो जो पहले पड़ाव होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज है, तब तक कैंसर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एकदम आखिरी स्टेज पर जाकर वो डिटेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए जागरूकता ज़रूरी है और इसीलिए मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। बेहतरीन इनिशिएटिव है और आज यहाँ पर इसकी शुरुआत के लिए यहाँ पर मौजूद है मणिपाल फाउंडेशन के सीईओ मिस्टर हरिनारायण, उनसे बात करेंगे। साथ ही कई सारे और मुख्य अतिथि भी मौजूद है और साथ ही एसजेडीए के चेयरमैन मिस्टर दिलीप दुगर भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे। कवच के बारे में बात करेंगे, लेकिन कवच के बारे में जो मुख्य 3 स्तंभ है या 3 पिलर्स है उन सब के बारे में आपको बता दें। पहला स्तंभ है जागरूकता। जी हाँ, लोगों तक जागरूकता पहुंचाना ही कवच का मूल उद्देश्य है। दूसरा है सहनशीलता या फिर संवेदनशीलता, क्योंकि बहुत सी सेंसिटिव एक बात है, कैंसर के बारे में सभी लोग थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, तो वो लोगों तक थोड़ा और समझाने के बारे में वो बात है। और साथ है सुरक्षा, किस तरीके से अगर कैंसर हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में हम सुरक्षित रह सकते हैं, लोगों को हम सुरक्षित कर सकते हैं, उस बारे में भी आलोचनाएं होगी। किस तरीके से ये कवच काम करेगा वो तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। श्री हरिनारायण शर्मा की सीईओ मणिपाल फाउंडेशन। ಇವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಪ್ಲವ್ Dr. Arnabudal Kurtuki, Regional Chief Operating Officer, Manipal Hospital East. কাছ থেকে আমরা শুনবো আজকের অনুষ্ঠান খবর। To everyone, Dilip ji, special thanks to you for making time for us. And हमारे साथ आए हैं Hari sir has come all the way from Bangalore. And without Mr. Hari Sharma, I don't think this program was possible. It was completely conceptualized by him as CEO of Manipal Foundation, and the whole thought process is this. So I wanted that to be here, and we're really honored that Sir could make his time today with us in Siliguri. It's an absolute pleasure to be here with all of you today. While Ainav said a lot of this problem, and then something has been working at our mind saying, what can we do so that people don't have to come to a hospital, and can we do something much before the disease actually strikes? We went back, did a lot of research at the Manipal University, and then there was very interesting statistics that was thrown at me. 70% of the spend in cancer goes in treatment, 30% goes or 20% goes in diagnostics, and only 5 to 10% goes in prevention and screening. This is stark contrast to what happens globally. Obviously, screening needs equipment. It took us some time to identify these 3 equipments. We have a handheld breast scanner, which can be administered by a paramedical people. We don't need doctors to go across, which is a very big challenge.
we have a cervical scanner which is supervised by a doctor, and an oral scanner which is like a toothbrush. All these three can be administered by paramedical people in a remote setting. All of it can come into a suitcase. So a vehicle and a suitcase is all that is required to take care home. Evening is happening in Siliguri. पहले तो मैं मणिपाल हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। আপনারা এটা খুব সুন্দর প্রচেষ্টা করেছেন, খুবই ভালো। আর আপনারা জেনে খুশি হবেন कि আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি হেলথ সেক্টরকে সবার থেকে আগে প্রাথমিকতা দেয়। Discussion about the type of cancer which is prevalent here, and accordingly we have decided to launch this program. INOX are definitely one of the main force who have been driving the hospital and inspiration, and obviously Dilipji, he has been very kind to support us. Sanjay has been running the administrative part of the hospital. So Rangapani is seeing a sea of change. A new cancer hospital is coming up at Rangapani, and probably by the middle of next year the new block, which is the advanced cancer block, will be ready. Now I just wanted to focus on why we have zeroed upon a certain kind of cancer. So I have been around, I came to Siliguri probably around 9 years back, and cancer is the most common cancer out here among males, and it is not that among females it is a rarity, it's common among females as well. It is primarily a preventable cancer if we can identify the disease in a pre-malignant stage. মানে ক্যান্সার হওয়ার আগে যদি জিনিসটা ধরা যেতে পারে একটা ক্যান্সারের আগের স্টেজে, তাহলে it is much more preventable, it is easier to treat. Cost of the treatment is lesser. রিভিউ করাবেন বা চেক আপ করাবেন, এই ধরনের একটা মডেল সেপারেটলি আমরা তৈরি করেছি। এরপর আপনারা যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা রয়েছেন তাদের সাথে ডিসকাশন করব, এবং তাদের যদি কোনো পরিকল্পনা থাকে সেখানে আমরা অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন কীভাবে কাজ করতে পারবো সামগ্রিক। In this device, so you'll get a cartridge. With this cartridge, we can do over like 100 scans. So this is the scan. We just have this is the device. So we just have to like place it over the breast area. So with this, in this we have a cell phone. The data will be saved here. So after the scan, we can give the report. We will generate a report. AI generation report will be there. So we can send it over to the patient also, the one who is on screen. Smartphone. So this is used for the cervical cancer screening. In this, we have this probe and a tab. So this is the probe. This will be placed inside the cervix. So with its screen. This is one disposable cap. So with like after each screening, we'll have to change this one. So here there will be a camera, and it will be placed inside the cervix, and we'll have to click pictures. Based upon the pictures, AI generation will be there for the reports, and the doctor will for the report for the further investigation will consult with the doctor. And the last one, it is the oral dental kit. As they said, it is like a electronic toothbrush. So in that will be we just have to place inside our oral area. So they will also in that also we'll have to like click pictures. Based upon the pictures only, the report will be generated. Which will be go inside our report. So for that, each patient we cannot use the same one. So for that we'll have to. This is the plastic. This will be plastic. So we'll have to cover it for each scan. Because this will go into the mouth. Yes. This will be a clean wrap. It has to be put inside, and then that this is disposable. These are the fibers. Mainly the camera
HbA1c. Okay, and this is the straight tube for the diabetic. And these are the HbA1c. Same survival. And these are the survival diets which we use in the Actually, everyone to come on board. This is not our program. It's a program we're doing in partnership with all of you. So please come on board. I think this is our moment together. तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर हरि नारायण शर्मा, CEO ऑफ मणिपाल फाउंडेशन। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। Thank you so much. It's a pleasure to be here with all of you. थैंक यू सो मच सर। ये जो नया कम्युनिटी हेल्थ स्क्रीनिंग है कवच, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका कैंसर जो एक बीमारी है, ये हम लोग उससे भागते हैं क्योंकि डर लगता है कि अगर आ जाएगा तो इसका क्या नतीजा है। आधा हमारा इग्नोरेंस के कारण होता है कि हमको मालूम नहीं इसको क्या करना है। दूसरा एक डर है कि अच्छा ये तो एंड ऑफ लाइफ हो गया। तो ये भय हमें निकालना है। इस भय को एक ही तरह निकाला जा सकता है अगर हम उसके बारे में चर्चा करें और इसको हम स्क्रीन करें। जितना जल्दी हम लोगों को स्क्रीन करते हैं उतना आसानी से हमें मालूम पड़ जाएगा कि उस पॉपुलेशन में इंसिडेंस रेट क्या है। एज एन इंडिविजुअल मैं अभी कैंसरस हूँ कि मेरे के पास 5 साल है जो मेरे को एकदम चिंता रहित रह सकती हूँ। सो द होल आइडिया इज कि वी शुड स्क्रीन पीपल so that they live a fearless life. They have a protection that I have been screened and I have nothing to worry about. That is the purpose of this whole Kavach. सर, ये जो कवच कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, ये आज से लॉन्च हो रहा है, तो ये किस तरीके से काम करेगा? इसमें हमने 3 डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। एक ब्रेस्ट के लिए हैंडहेल्ड स्कैनर है, एक सर्वाइकल स्कैनर है और एक ओरल स्कैनर है। ये तीनों हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, तो इसके लिए बड़ा रूम ये सब नहीं चाहिए। ये सब मिला के एक सूटकेस के अंदर आ जाएगा। इसको हम लोग एम्बुलेंस में या व्हीकल में ले जाकर कम्युनिटी लेवल में इसको स्क्रीनिंग करेंगे घर के बगल में, सो दैट पीपल डोंट हैव द फियर कि हमको कहीं अस्पताल जाना है। अस्पताल में भी जरूरत नहीं है। एक अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, अस्पताल आपके पास आ रहा है। अस्पताल आपके पास आ जाएगा और इंस्टेंटेनियसली आपको मालूम पड़ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है, तो इसमें इंस्टेंटली आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, रेड येलो ग्रीन मालूम पड़ जाएगा। रेड मतलब आपको है अभी रिस्क है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। येलो मीन्स आप अभी चिंता रहित रह सकते हो, टेंडेंसी है 3 साल बाद आप कर सकते हो। ग्रीन है मतलब आप अगला स्क्रीनिंग 5 साल बाद करो। तो इसे एक सॉर्ट ऑफ गेट कीपर जैसा हो जाता है। ये कितने टाइम पीरियड के बाद होगा? मतलब पहला स्क्रीनिंग सपोज आज हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनिंग कब? Depending if you are in the yellow category, you'll have to do it in 3 years. If you are in the green category, you can do it in 5 years. एंड जो कम्युनिटी स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से, ये कितने महीने अंतर में होगा? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि आज साल भर रहेगा। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटीज टू कम, बिकॉज यहाँ पर जो है हिली टेरेन है, तो हर जगह आसान से नहीं जा सकते हैं। तो प्लान करके, बट दिस विल बी अ ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। एंड ये नहीं कि आज से चालू करके मार्च में खत्म करने वाले हैं, नहीं, ये कंटिन्यूसली इस तरह से चलता है। इट्स अ कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम। इसके साथ हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी स्क्रीनिंग करेंगे। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, वो भी। तो हर एक आदमी के पास एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड देना चाहते हैं जो कि उसका हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा। तो उसके बाद कुछ भी बाद में कोई सिम्टम आया तो मालूम पड़ेगा कि इतना दिन पहले इसका स्क्रीनिंग हुआ था, इसमें ये नहीं मालूम पड़ा था, अभी मालूम पड़ा है तो ये इस बीच में हुआ है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका बेटर हो जाता है। सर, क्या आपको लगता है कि ये स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों के मन में जो डर है, स्पेशली महिलाओं के अंदर में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत देर से पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या इस कम्युनिटी स्क्रीनिंग के माध्यम से उनका डर खत्म हो सकता है? इसका पर्पस वही है कि ये इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन फॉर यू, इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन फॉर यू। अगर ये कर लोगे तो यू आर सेफ। So that the whole purpose of the screening is to give this sort of a protection. There is a lot of education that will come along with it. इसमें खाली हम जाके स्क्रीन कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उसके साथ उसका अवेयरनेस करके इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं, दैट अवेयरनेस also has to be built. Then this will work very well.
सो आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे अवेयरनेस के बारे में? हम यही चाहते हैं कि इसका मैसेज जो है आप जितने दूर तक, जितने गांव में, जितने अनरीचेबल एरिया हैं, आपके घर में जो काम करते हैं, मेज वगैरह काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन करिए कि इसमें डरने में कुछ नहीं है। करा लेने से डर के बिना रह सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यूसली डर रहेगा कि मेरे को अभी आ गया तो क्या होगा। सो जितना होगा आप मदद करिए। टेल पीपल कि आप जाओ करा लो, कम्युनिटी में आया है करा लो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। करा लेंगे तो चिंता रहित रह सकते हैं, तुम्हारे पास एक प्रोटेक्शन रहे। दैट इज ऑल दैट आई विल रिक्वेस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अरनाव देव गुप्ता, रीजनल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर मणिपाल हॉस्पिटल। वेलकम टू खबर समय सर। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है इस स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों तक जागरूकता पहुंचेगी? क्योंकि अभी तक बहुत सी महिलाएं हैं या फिर बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि बाई चांस हम गए और हमको पता चला कि हमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो आगे क्या करेंगे? एकदम सही बोला आपने। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, जिसके वजह से कैंसर डिटेक्शन मोस्टली ऑलमोस्ट 70% होता है स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में। एंड स्टेज 3 स्टेज 4 में जब डिटेक्ट होता है, आपका चांसेस ऑफ रिकवरी गोज डाउन ड्रास्टिकली। 10-15% चांसेस होती है रिकवरी की। पर ये स्पेशली इन वुमेन, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर इज प्रिवेंटेबल। फर्स्ट थिंग, यू मे नॉट बी एबल टू डिसाइड आपको कैंसर होगा कि नहीं, हम किसी को नहीं पता, हो ही सकता है। पर कैन वी डिटेक्ट इट इन स्टेज 1? इसके लिए क्या अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, ये इज द होल पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड कवच। एंड कवच हम चाहते हैं कि हम ये जागरूकता ले जाएं सारे कम्युनिटी में। एंड एक इंसिडेंस है हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका रीजन भी है। नॉर्थ ईस्ट में एंड एंटायर दिस बेल्ट, द एवरेज एज ऑफ कैंसर इन वुमेन इज 10 years अर्लियर। कंट्री का एवरेज इज 54, यहाँ पे इज 45। सो विच इज अ वेरी बिग कंसर्न। क्यों है इसका शायद रिसर्च से पता चले, बट हम क्या कर सकते हैं इसको लेके, ये हमको देखना है। एंड हमारी सबसे बड़ा जो हमारा चांस है इज टू गेट अर्ली डिटेक्शन डन। एंड इसके लिए हम चाहते हैं, हम वी आर वर्किंग टुगेदर विद, ये सपोर्ट किया जा रहा है मणिपाल फाउंडेशन से। मणिपाल फाउंडेशन इज अ पेरेंट बॉडी ऑफ मणिपाल हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, पर फाउंडेशन के थ्रू से हम चाहते हैं कम्युनिटी में जाए, सबको अवेयर करें कैसे कैंसर से बचा जाए। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ये मणिपाल फाउंडेशन का एक बहुत ही यूनिक प्रपोजिशन है पूरे बंगाल के लिए। सिलीगुड़ी, कलकत्ता, वी गो टू एवरी म्यूनिसिपैलिटी एंड वी आर डूइंग इट। एंड यहाँ पे वी आर ऑल्सो पार्टनरिंग विद ऑल द सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, लायंस के साथ, रोटरी के साथ, और ऐसी काफ़ी संस्थाएं हैं जो सोशल वर्क करती हैं। उन सब के साथ जोड़ के हम ये इन अ वे इट्स अ मुहिम होता है, वी टेकिंग दिस टू द कम्युनिटी। सर, आप कौन कौन से एरिया को कवर कर रहे हैं कवच के माध्यम से? पूरा नॉर्थ बंगाल, कंप्लीट नॉर्थ बंगाल। विल गो टू टी स्टेट्स, विल फाइंड आउट पॉकेट्स, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। विल ट्रीट एटलीस्ट 5,000 वुमेन एंड वी विल डिटेक्ट एंड डू स्क्रीनिंग फॉर 5,000 वुमेन। सर, एक और सवाल है आपसे। कई बार सिर्फ गांव एरिया, जो रूरल एरिया है, वहाँ ही नहीं बल्कि शहरों में भी कई सारे घर हैं ऐसे, उनके घरों में भी अवेयरनेस नहीं होता है, या फिर वो भी सोचते हैं कि अभी तो हम ठीक है, इसका मतलब स्क्रीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। शहरों में भी ऐसा देखा गया है कि वो लेट से पता चलता है। तो क्या कवच के माध्यम से उन तक भी कुछ वार्ता पहुंचाया जा सकता है? 100%। ये जितना शहर में है इतना शहर से बाहर है। कैंसर तो लोग देख के नहीं आता है, तो वी आर एवरीवेयर। सर, एक आखिरी सवाल, कवच के माध्यम से क्या सिर्फ फिजिकल इलनेस को ही क्योर करने के लिए आप सोच रहे हैं, या फिर मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस की तरफ भी आप लोग कुछ ध्यान दे रहे हैं? नहीं, ये जो है ये माइंड में भी काफ़ी प्ले करता है कैंसर, वो डर जो है। तो काउंसलिंग, उनके प्रिवेंटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड एक जागरूकता जो होगी, इट्स ऑल इन द माइंड एंड इट्स नॉट अ टैबू। कैंसर को अभी भी लगता है कि इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, विच इज़ नॉट। तो ये सारा कुछ टैबू भी हम सबको विल मेक देम अवेयर ऑफ दैट।
सो मच। Thank you very much. इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर संजय सिंह महापात्रा, डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल मणिपाल सिलीगुड़ी। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय एंड बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, उसके लिए कंग्रेचुलेशन। Thank you so much for that. सर, ये इनिशिएटिव जो लिया गया है मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से, इसमें मणिपाल हॉस्पिटल का कितना योगदान रहेगा और जो भी टीम्स जाएंगी स्क्रीनिंग के लिए उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाएगा, कितने लोगों का टीम्स रहेगा, वो थोड़ा बता दीजिए। So मैम, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। इसमें हॉस्पिटल का जो भूमिका है उसमें टू प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट फॉर द इंटायर स्क्रीनिंग। और टेक्निकल सपोर्ट में एक तो देयर विल बी डॉक्टर्स जो जाके अवेयरनेस का जो है स्प्रेड करेंगे। दे विल बी टॉकिंग टू द पीपल हु विल बी देयर इन द कम्युनिटी एंड पोस्ट दैट द टेक्नीशियंस अलॉन्ग विद द नर्सेस जो लोग इसको जाके डिवाइसेस को जाके यूज़ करेंगे एंड दे विल बी एडुकेटिंग एंड ऑल्सो स्क्रीनिंग द patients. So उसके बाद after whatever the result is, if they need some further consultation or further reference, they will refer to the hospital. And if they do not, they will also be advised कि maybe they should have some regular health checkup on yearly basis or maybe in 2 yearly basis. So that is the whole purpose of doing this, and that is the role of the hospital. सर, इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम में क्या सिर्फ ओरल और सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीनिंग ही होगा या फिर जनरल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ किसी को होता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स, नॉर्मल ब्लड टेस्ट या फिर आई स्क्रीनिंग, ये सब भी होगा? देखिए, अगर हम बात करेंगे कि 90% जो डिजीज लोड है वो भी रूरल इंडिया में, इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ नॉट मोर देन 70 to 75 डिजीजेस। सो ये जो प्रचेष्टा है इसमें कवर करना मोटा मोटा मैक्सिमम जो स्क्रीनिंग है, जनरल डिजीज के लिए भी हम इसको जो है स्क्रीनिंग करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल डू द, इफ रिक्वायर्ड वी विल डू द स्क्रीनिंग फॉर द कैंसर। सो जनरल स्क्रीनिंग तो होगा ही। हाँ, इसमें जो बेसिक हाइपरटेंशन से लेके डायबिटीज से लेके थायराइड, ये सारे जो बेसिक पैरामीटर्स है उसका स्क्रीनिंग तो होगा। उसके साथ अगर इफ रिक्वायर्ड देन विल डू द स्क्रीनिंग फॉर द कैंसर। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं, खबर समय के माध्यम से आप लोगों तक कुछ बताना चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहते हैं कि हॉस्पिटल नाउ गोइंग, दे आर अटेम्प्टिंग टू गो टू द कम्युनिटी, बिकॉज जितना हम अवेयर रहेंगे उतना तंदुरुस्त रहेंगे। आप लोगों को ना आना पड़ा अस्पताल में ही हम लोगों का विनती है। और रेगुलर जो है हेल्थ चेकअप करते रहिए एंड प्लीज हैव कंसल्टेशन इफ देयर इज एनी डेविएशन। सो अभी विद दिस पोल्यूशन एंड ऑल द लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुआ है उसमें वी आर इनवाइटिंग लॉट मेनी डिजीजेस। सो इसमें तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। रेगुलर चेकअप में रहिए और बी वेरी वेरी अलर्ट। Whenever is there anything, any symptoms is there, please have a consultation. Thank you so much. थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीए के चेयरमैन मिस्टर दिलीप दुकर जी। हेलो सर, खबर समय में स्वागत। नमस्कार। सर, ये जो पूरा वेलनेस कम्युनिटी जो प्रोग्राम है कवच जिसका नाम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, मणिपाल समूह ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि वो लोग कैंसर के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और पहले से स्क्रीनिंग करेंगे। और इससे कैंसर रोगियों को यदि पहले से स्क्रीनिंग हो जाती है तो इसका इलाज संभव है और इलाज हो भी जाता है। तो ये पहले स्क्रीनिंग करने का जो इन्होंने कम्युनिटी आउटरीच का ये प्रोग्राम जो शुरू किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत मणिपाल हॉस्पिटल समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि इससे कितने लोगों का फायदा हो सकता है? इससे ये लोग, अभी मेरे से बात हो रही थी कि ये लोग समूचे पूरे सभी इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह जाएंगे और ये इस तरह का प्रयास वो लोग, मैंने भी किया है एनजीओ के साथ, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है और बाकी जो एनजीओ हैं उनके साथ, सबके साथ मिल के करें तो एक बहुत अच्छा इसका सुफल मिलेगा। सर, हमारे मुख्यमंत्री भी हेल्थ सेक्टर को लेकर काफी तत्पर है, वो भी काफी सारे काम करती है, तो उनको लेकर क्या कहना? हमारे राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर मानती है और आप देखिए कि जिस तरह का स्वास्थ्य साथी जैसी स्कीम पूरे देश में, ये सबसे अनूठी स्कीम है जहाँ हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत दूरदर्शी हमारी राज्य की मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी से शुरू करके हेल्थ सेक्टर में एक बहुत ही
रेवोल्यूशनरी उन्होंने काम किया है और आप देखिए कि हेल्थ सेक्टर में हम पूरे देश में अग्रणी भूमिका में। हमने बात की मणिपाल फाउंडेशन के सीईओ और साथ ही मणिपाल हॉस्पिटल से जुड़े कई दूसरे व्यक्तित्व से, और सभी से हमें पता चला है ये जो कवच जो प्रोग्राम है, जो इनिशिएटिव है, इसमें क्या क्या रखा जाएगा, क्या क्या कवर किया जाएगा। वेल, इसमें तो सबसे पहले एक फ्री कंसल्टेशन होगा, लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाएगी और कई सारे और दूसरे कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और साथ ही ये जो कार्यक्रम है, ये जो इनिशिएटिव है, ये सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि साल भर विभिन्न क्षेत्र में चलाया जाएगा। और हमें भी उम्मीद है कि कवच के माध्यम से, इस इनिशिएटिव के माध्यम से नॉर्थ बंगाल के लोगों तक, घर घर तक जागरूकता पहुंचेगी और हम एक ना एक दिन कैंसर को ज़रूर हरा पाएंगे। इसी के साथ मैं अनिंदिता लेती हूँ आपसे विदा। आप देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।